In last lecture, we had discussed about the first Gauss application. An application is the electric field due to background straight wire, and the formula is the E is equal to 2k lambda upon R. In vector format, E is equal to 2k lambda upon R into R cap. Now this electric field is inversely proportional to distance. Now today we have discussed about the more three applications of Gauss application. First, the electric field due to metallic sheet, square or rectangular. Then third, electric field due to spherical cell, the hollow sphere, and the electric field due to the solid sphere. Okay, so now first we have discussed about the electric field due to the metallic sheet. Okay, in given diagram, metallic sheet have a positive charge and all charge in the surface of sheet, and therefore we used surface charge density. The surface charge density of given sheet is a sigma. Now we calculate the electric field to both the sides of metallic sheet at an equal distance. Both the side of metallic sheet at an equal distance. So now we consider the Gaussian surface in cylindrical shape, because electric field both the side is the outside, because the surface charge density is a positive, and therefore vector give a direction of electric field. So now vector E and vector E. Now the cross section of cylinder is called A. Here also A. Now this point is 1, this point is 2. हमको कैलकुलेट क्या करना है कि दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड due to metallic sheet. Okay, so now first we discuss integration E into ds. So now here E in outside, ds मतलब area vector also outside. So now E into ds cos 0, and therefore EA ds is equal to A. So EA cos theta. So for point 1, this multiplication is EA. Similarly, for point 2, this multiplication also E into A, and therefore for both the side E into ds is equal to 2EA. is equation number 1. क्योंकि गॉस इक्वेशन जो है इसकी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन E into ds is equal to sigma q upon epsilon 0. Epsilon 0. So now E into ds, LHS side of gas equation. For this example, both the side equal quantity, you get E into A. So now total E into ds is equal to 2EA. Now the second point. So now in unit area, number of electric charge sigma. So now in given area, total electric charge. So now sigma q is equal to summation q is equal to sigma A. Summation q is equal to क्या मिलेगा? Sigma A. And therefore this is equation number 2. So equation number
So now integration E into ds is equal to summation q upon epsilon 0. So E into ds is 2EA. Summation q is equal to sigma A upon epsilon 0. So now both the side we cancel, and therefore E is equal to sigma upon 2 epsilon 0 is the electric field due to metallic sheet. अब देखो कि जो मेटालिक शीट दी है उनको बताइए यूनिफॉर्म लेंथ और ब्रेथ की होनी चाहिए, और तब जाके फॉर्मूला है। ओके, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है। सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे n कैरेट। n कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर, n कैरेट इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ओके, इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ वाली जो शीट है इसके दोनों साइड आपको इक्वल डिस्टेंस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ आर नहीं दिया। लेकिन एक चीज और भी है कि जो रूटीन में हमको शीट मिलेगी या रूटीन के अंदर जो भी हम सरफेस जानते हैं, सिर्फ फाइनाइट लेंथ क्लियर और फाइनाइट ब्रेथ, क्योंकि आप उसकी लेंथ और ब्रेथ जानते होंगे, और तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब सपोज मैंने इसको स्क्वायर लिया तो ये लेंथ, ये भी लेंथ, मतलब इसको r बताएंगे, ये भी r बताएंगे। सो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ द स्पेशल केस या स्पेशल डिस्कशन फ्रॉम दिस क्वेश्चन। As for example, I have two metallic sheet and plus sigma and plus sigma so electric charge density, मतलब दोनों शीट के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज ही है। यहाँ मैंने पॉइंट लिया P, यहाँ पॉइंट लिया Q, यहाँ R। So now, so what is the field intensity at point P, Q and R? Okay, this is the first plate. Second, okay, electric field due to first at point P in this direction is called E1 because पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट एट पॉइंट P1, sorry, at point P also outside, it's called E2. So now total electric field at point P is E1 plus E2. Similarly, electric field due to first plate at point Q is called E1. Electric field at point Q due to E2, sorry, electric field at point Q due to second plate is called E2. So similarly, electric field at point Q also E1 plus E2. But now the electric field at point R. So now first plate electric field outside मतलब इस direction में, second plate out, second plate positive, electric field outside इस direction में. So now resultant at point R is या E2 minus E1 या E1 minus E2. E2 minus E1 then E2 greater than E1. E1 minus E2, E1 greater than E2. मतलब यहाँ दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। लेकिन सपोज 0 then E1 is equal to E2. सपोज E1 E2 is equal to मैंने E लिया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2E, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2E, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0.
So now this diagram for electric field due to two positive charge plate. Similarly, to negative charge plate. Similarly to negative charge plate. So now electric field due to first plate. Electric field due to first plate, say inside. Similarly, electric field due to second plate also inside. At point P, and at point P, the total electric field is E1 plus E2. Now similarly, electric field at point Q due to first plate is the E1 inside. Electric field at point Q due to it मतलब second also E2 inside. क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर. सो नाउ द रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट Q is E1 plus E2. And similarly, electric field at point R due to plate 1 E1 क्या लिखेंगे inside. Electric field due to plate 2 at point R is called E2, so inside. So similar method again is suppose electric field between two plates, मतलब electric field at point R. Suppose E2 greater than E1, so E2 minus E1. E1 greater than E2, so E1 minus E2. But suppose E1 E2 is equal to E. E1 E2 is equal to इस E का मतलब क्या होगा कि दोनों सिग्मा सिग्मा है, तो दोनों इक्वल होंगे and therefore 0. इसका मतलब कि जब दोनों पॉजिटिव प्लेट है या दोनों नेगेटिव प्लेट है, so electric field between two plates is always 0. But outside the plate, electric field is not 0 but double. But क्या रहेगा double. अब थर्ड पॉइंट में ऐसा दिया, फिर से दो प्लेट ड्रॉ कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड. हियर पॉइंट P, हियर पॉइंट Q, पॉइंट R. ओके, दिस प्लेट्स प्लस सिग्मा एंड द माइनस सिग्मा. अब देखो दोनों के लिए आपका डेंसिटी इक्वल ली, इसका मतलब दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होगी. क्लियर? सपोज सिग्मा 1 सिग्मा 2 करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 ऐसा हो जाएगा. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लेट 1, सो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सेकंड प्लेट, सो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, फील्ड क्या होगा इनसाइड. क्लियर? सो नाउ सिग्मा सिग्मा दोनों इक्वल डेंसिटी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों इक्वल होंगे, सो E1 minus E2 is equal to 0 because sigma 1 is equal to sigma 2. Clear? Now similarly at point Q, first plate की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, सेकेंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. So now electric field at point Q also E1 minus E2 is equal to 0 because sigma 1 is equal to. Clear? Now electric field at point R due to plate 1, तो positive plate, it's called E1. So now negative plate, it's called E2. So now electric field between the two plates is called E1 plus E2. And suppose E1 E2 is equal to E because sigma 1 is sigma 2 is equal to sigma. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 बट द इनसाइड प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E1 plus E2. और वो भी आप चेक करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज टू
नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये स्पेशल एक्सप्रेशन इसलिए दिया कि ये हमको एमसीक्यू में काम में आएगा। तो इस टॉपिक के बाद एक चीज और भी करेक्शन याद रखना है कि आज हमने अभी कंप्लीट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक शीट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हमने अभी ये कंप्लीट किया। अब एक चीज याद रखो कि ये इक्वेशन कब यूज होगा कि जब आपको मेटालिक शीट के दोनों ओर फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर? क्योंकि हमने जब बनाया था दोनों फील्ड क्लियर था। सपोज किसी एक साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो आपको क्या लिखना चाहिए? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस टेक्स्ट बुक में जितने एमसीक्यू है या इस टेक्स्ट बुक में के अंदर जब भी आपको मेटालिक शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ऑलवेज उन लोगों ने यही फॉर्मूला यूज की है, सिंगल साइड हो या डबल साइड हो। लेकिन लॉजिकल कंटेंट क्या है कि जब दो साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी एक साइड के लिए आपको जब कैलकुलेट करना है तो E इज इक्वल टू आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन ऐसा इस टेक्स्ट में लिखे नहीं दिया। क्लियर? तो आज ये पहले सेकंड केस हमने आज कंप्लीट किया है, सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट की कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ब्लैक मेटालिक शीट। क्लियर? और आंसर मिला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। नाउ द थर्ड गॉस एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical cell, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical cell। ओके, जितनी भी एप्लीकेशन है सभी एप्लीकेशन इसी फॉर्मूला से कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले स्फेरिकल सेल ड्रॉ करेंगे। ओके, स्फेरिकल सेल की रेडियस है कैपिटल R। सेल है मतलब होलो स्फीयर है, सभी पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर होंगे। ओके, अब स्फीयर लिया, चार्ज ऑन सरफेस, तो अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यूज करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन यूनिट एरिया। ओके, अब इसमें दो चीजें हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्लियर? सपोज इस गाउसियन सरफेस की रेडियस है r, गाउसियन सरफेस की रेडियस r है। ओके, वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन E इनटू ds समेशन q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब स्फीयरिकल सेल के अंदर या किसी भी स्फीयर के लिए किसी भी पॉइंट के लिए आप चेक करो E और ds ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। एज फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब फील्ड बाहर क्या होगी, फील्ड बाहर क्या होगी। ये हमें क्रॉस सेक्शन दिया ds, तो उसकी डायरेक्शन भी बाहर क्या होगी। इसका मतलब E and ds both are parallel to each other every point of sphere, at every point of sphere. So now E into ds cos 0 summation q upon epsilon 0. Now E into ds इसका मतलब एरिया ऑफ Gaussian surface. So now Gaussian surface is the also cell and the area is 4 pi r square because the radius of Gaussian surface is a small r. Now that is equal to summation q upon epsilon 0. Now we calculate summation q. So अभी इधर in unit area number of electric charge sigma. So now total electric charge on given sphere is how much? कि चेक करो कि इस गाउसियन सरफेस से पूरा स्फीयर कवर कर सकते हैं। जब हमने गॉस इक्वेशन पढ़ा तभी बताया सिग्मा क्यू मतलब द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। सो नाउ सरफेस के अंदर पूरा स्फीयर है, सो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन गिवन स्फीयर, so in unit area number of electric charge sigma. So now
4 पाई आर स्क्वायर, सो लिखेंगे समेशन क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ओके, ये वैल्यूएशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई, ये वैल्यूएशन सब्स्टिट्यूट करेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा एप्सिलॉन 0, 4 pi cancel. So now electric field electric field E is equal to sigma r square epsilon 0. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन एक चीज और कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। सो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन स्फीयर इज कैपिटल Q, एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, सो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। So now E is equal to, so sigma is equal to Q R square upon, पहले क्या करेंगे 4 पाई R square into epsilon 0 R square, so now R square cancel, okay 1 upon 4 pi epsilon 0, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square, and that is equal to KQ by for R. So this equation for third application, और वो भी किसके लिए, स्फेरिकल सेल के बाहर, मतलब R इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा तब जाके फील्ड होगा। क्लियर, सिर्फ दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं, ये वाला इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये वाला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दोनों इक्वेशन स्फेरिकल सेल के लिए याद रखें। और स्फेरिकल सेल में भी केस है क्या, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड। क्लियर, अब हम डिस्कस करेंगे इनसाइड, अब हम डिस्कस करेंगे इनसाइड। Okay. Spherical cell radius capital R, positive charge distribution on surface of sphere and surface charge density sigma. Now we consider the Gaussian surface inside. We consider Gaussian surface inside the spherical cell. So now formula of Gauss equation, E into ds summation q upon epsilon 0. So now for spherical cell पहले भी लिखा था E into ds relativity इधर मतलब थीटा इक्वल टू 0। So now E into ds मतलब 4 pi r square, the area of Gaussian surface। अब सिग्मा की या समेशन क्यू, समेशन क्यू का मतलब है, समेशन क्यू का मतलब है जो आपने गाउसियन सरफेस ड्रॉ की इसके अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज है, गाउसियन सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितने हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो गाउसियन सरफेस से बाहर है, इनसाइड द गाउसियन सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज 0 एंड देन टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज 0, सो नाउ E is equal to also 0। तो सबसे इजी हो गया।
स्फीयरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, R इज लेस देन कैपिटल R. Inside electric field zero, maximum electric field on the surface of sphere, and then far at a distance the electric field due to spherical cell is inversely proportional to square of distance. इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सरफेस में मैक्सिमम है. इससे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से मिलेगा. ओके, इसको ग्राफ से एक्सपेंड करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर इज द ओरिजिन. ओके, इक्वल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब वो डिस्टेंस रेडियस जितना है. तो मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैक्सिमम एट रेडियस या सरफेस, एंड देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओके. ये वाला जो पोर्शन है वो इनसाइड है जहाँ फील्ड जीरो है, मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, एंड देन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ओके, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस पे. क्लियर? तो इनसाइड जीरो, मैक्सिमम ऑन सरफेस, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ओके, तो फर्स्ट मेटालिक शीट के लिए था, सेकेंड जो मैंने एक्सप्रेशन दी स्फेरिकल सेल के लिए है. क्लियर? अब बता रहा हूं, अब जो कंप्लीट करेंगे वो होगा सॉलिड स्फीयर के लिए. सॉलिड स्फीयर मतलब पूरा स्फीयर इलेक्ट्रिक चार्ज से भरा हुआ होगा. ओके, जब पूरा स्फीयर इलेक्ट्रिक चार्ज से भरा होगा तो इसका मतलब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे. ओके, फर्स्ट वी आर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर. And outside sphere, so we consider Gaussian surface of radius small r, and radius of sphere is capital R. Okay, now again we start with equation E into ds summation q upon epsilon 0. So now electric field E and ds always क्या होगा, पैरेलल, थीटा इक्वल टू जीरो. नहीं पता चलता फिर बताओ. इस स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बिकॉज टोटल चार्ज पॉजिटिव, सपोज स्मॉल एलिमेंट ds also area vector outside. E and ds both are parallel to each other, and therefore theta equal to 0, and therefore summation q upon epsilon 0. Clear? And it's called E into ds summation q upon epsilon 0. Okay, now E into ds मतलब area of Gaussian surface is called 4 pi r square. 4 pi r square is equal to summation q upon epsilon 0. Now we find summation q. So now in unit volume, total electric charge rho. So now in given Gaussian surface, total electric charge is how much? Okay, Gaussian surface से पूरा स्फीयर कवर हो जाता है. इसका मतलब स्फीयर के अंदर जितने इलेक्ट्रिक चार्ज सभी Gaussian सरफेस के अंदर है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी?
So volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. So now summation q is equal to 4 by 3 pi r cube into rho. So ये ऐड कर देंगे, मतलब इसको सेपरेट कर देते हैं. E into 4 pi r square. So now 4 by 3 pi r cube rho upon epsilon 0. So both the side 4 pi cancel. So now E is equal to rho r cube upon 3 epsilon 0 into 1 by r square. Clear? E is equal to rho r cube 3 epsilon 0 1 by r square, where r is greater than capital R. But rho is equal to total charge upon total volume. सपोज ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यूएशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे पहले? रो इज इक्वल टू क्यू 4 by 3 pi r क्यूब. रो की वैल्यू आ गई, ओके, इंटू आर इंटू 3 epsilon 0 r square. So now r cube cancel, 3 cancel. E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square, and that is equal to kq by r square for r is greater than capital R. तो फॉर्मूला आप याद रखिए, in terms of volume charge density, in terms of electric charge. तो ये सॉलिड स्फीयर की सॉलिड स्फीयर से बाहर, मतलब सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, ये दर्पण में यही क्वेश्चन दिया है, लेकिन इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डिस्कशन नहीं की. ओके, तो हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करेंगे. ओके चलो, अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है. तो मुझे स्फीयरिकल सेल के अंदर गॉसियन सस्पेक्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी. स्मॉल आर वो आउटसाइड था, अब क्या लिखेंगे? इनसाइड. फॉर्मूला तो उसी तरह से रहेगी, इंटीग्रेशन E into ds is equal to summation q upon epsilon 0. Now E into ds cos 0, because E and ds both are parallel to each other, and therefore sigma q upon epsilon 0. So formula is E ds is equal to sigma q upon epsilon 0. Now आगे, okay, हमने पहले रिपीटेशन कंप्लीट कर ली. ओके, नाउ E into ds. So सबसे पहले we write E. ds मतलब the area of Gaussian surface is a 4 pi r square. 4 pi r square. Now summation q. पहले लिखते थे summation q upon epsilon 0. So now in unit volume, electric charge rho. Electric charge rho. So now in given volume, क्योंकि देखो ये जो है वही गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाली इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट करनी है, तो आप लिखेंगे 4 by 3 pi small r क्यूब. क्योंकि ये जो मैंने सेलो करके बताया वही एरिया है कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्फेरिकल मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर है. सो नाउ समेशन q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 by 3
पाई आर क्यूब इंटू रो। ओके, तो ये सब वैल्यू ऐड कर देंगे। सो नाउ ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब रो अपन एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ पूरा 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई और ये, सो रिमेनिंग पार्ट इज ई इज इक्वल टू रो आर 3 एप्सिलॉन 0 फॉर आर इज लेस देन आर। ठीक, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब सेंटर से जैसे जैसे आप बाहर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी एंड मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, देन आगे जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, यहाँ फिर से वो लिखेंगे कि रो इज इक्वल टू q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये ऐड कर देंगे। जब ये वैल्यूएशन आप ऐड करेंगे सो नाउ E इज इक्वल टू क्या ऐड करेंगे Q 4/3 पाई आर क्यूब, रिमेनिंग पार्ट इज स्मॉल r 3 एप्सिलॉन 0 ओनली 3 कैंसल। क्लियर, अब चेक करो E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्लियर, Q r अपॉन आर क्यूब, क्यू आर अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं R इज लेस देन R, R इज लेस देन R। तो ये पूरी थियरी जो मैंने एक्सप्लेन की, पूरी थियरी वो इनसाइड के लिए था। ओके, यहाँ भी वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। R is less than R, R equal to R, R is greater than R। तो यहाँ चेक करो कि आप जैसे जैसे इसको डॉटेड लाइन में बता दें, इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर से जैसे जैसे बाहर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये जो था वो सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो भी आउटसाइड और इनसाइड। क्लियर, ये इनसाइड वाली पोर्शन दर्पण में नहीं टेक्स्ट बुक में होगी, और इसलिए मैंने पूरा आपको कंप्लीट करके दिया। बस चैप्टर में इतनी थियरी है, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज जो मैंने 3 एप्लीकेशन बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटालिक शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, आप कंप्लीट कर लेंगे। और उसकी पीडीएफ पहले से ही सेंड कर दी गई है। मैं बताओ आप कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में लिख के देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 65, 66 एंड 67। क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखेंगे, इधर 64, 65, 66 एंड 67 इतने क्वेश्चंस के आंसर लिख के होमवर्क में कंप्लीट करना है। 1 मिनट। 64, 65, 66, 68 नॉट 7, 68। क्लियर, यहाँ तक आप लिख के मुझे कंप्लीट करके देंगे।